सब चीज everything will be centered around MBA, but I don't want to restrict because अगर इस वक्त अगर आपको सेकेंड ईयर में हो और अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, then I think it's the finest thing to have happened to you. Okay, but if you are not clear about it, let me give you various options which are there. So first thing first is obviously go for placements immediately after your graduation because that is your first brush with an outside world. Okay, comfort zone से बाहर निकल के सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो, वहां पे the contract is on money. You are paid for something. Okay, that is visible? Somewhat visible? Okay. So the thing is, placements is one thing that आपको पहली opportunity मिले placements की, please go ahead and apply for it. नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इंटरव्यू में जरूर बैठ कर आओ because first time somebody is evaluating you as far as your personality is concerned. Okay. Second thing, if you are a kind of person who loves his or her subject, loving your subject and liking your subject is a totally different thing. You may like your subject because आपको academics वैसे ही पसंद है. Academics क्यों पसंद है? क्योंकि आपको marks आने पसंद है. The way कई लोग हमारी सोसाइटी में आज भी everything is being सबका कहते हैं ना benchmark is marks कितना है. तो मेरे को अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है. ये this is like liking. But if you love your subject, you would go beyond the curriculum defined by Delhi University or IP University. That means you would seek the cutting edge information about your subject in Coursera or Udemy's of the world. Okay. अब अगर आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 साल का प्लान बनाओ कि 7 साल में पीएचडी करनी है, और ये तब करनी है अगर आप एकेडमिक्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हो. Because you start your career as an assistant professor or a reader in some good university. So ये तभी है अगर तुम्हें अपने सब्जेक्ट से प्यार है. अब सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है अपना, मुझे कॉमर्स पसंद है, मुझे साइकोलॉजी पसंद है, मुझे मैनेजमेंट पसंद है, but I'm more interested. I'm not interested in going for a teaching profession. I'm more interested in going to the corporate world. और corporate world में भी मुझे front end roles पे नहीं जाना है. मुझे स्ट्रेस वाले जॉब्स नहीं चाहिए, मुझे बैक एंड वाले जॉब चाहिए, एनालिटिक्स जॉब चाहिए. तो भी आप एक करियर बना सकते हो R&D बैक एंड और एनालिटिक्स में. ज्यादा फैंसी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, बट हाँ डिसेंट सैलरी अच्छे खासा बता सकते हो. But if you are a kind of person who's aiming for leadership position in the corporate world, or if you are very curious about starting your own business in the future, maybe after gaining experience, then so you should go for an MBA. Up, so next. Now, people say कि सर पहले मैं थोड़ा ना MBA के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मैं अपना जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ अपने आप को, which is not a bad thing at all. मतलब there are various pros, excuse me, there. आगे. So there are various positives about starting your career immediately. First thing first, boss, you start earning. You are not dependent on anyone. तो सबसे पहले अब iPhone 17 तो आ गया, 18 और 19 के लिए आपको इधर-उधर से पैसे अर्न करने की जरूरत नहीं है. सीधा गए, आप अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाओ और अच्छे खासे ब्रांड में काम कर रहे हो तो फ्यूचर वर्ल्ड, इन्वेंट, ये सब मिला के आपको अच्छा क्रोमा वगैरह आपको अच्छा आपका फिर वो बना देंगे EMI स्कीम, एंड 24 मंथ्स के लिए आपका EMI हो गया. राइट. अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, पार्टी में आपको पैसे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कमा रहे हो, खुद एंजॉय कर रहे हो, विच इज इंडिपेंडेंट हो गएगा, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव हैपेंड टू यू. ओके. अब आप चीजें खरीद भी सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, और जो ये सब तो मटेरियल चीजें हैं. द थिंग्स दैट कैन नॉट बी touched, or the things cannot be bought, but that can only be felt are the ones you get to know the nitty-gritties of the corporate world. आपको लगता है कि आपके मार्क्स के बेसिस पे या आपके टैलेंट के बेसिस पे आपकी ग्रोथ होती है. जैसे से आप अपने करियर में ग्रो करते जाओगे, the soft skills matter the most than the technical skills. So how you need to have kind of equation with your vendors, your suppliers, your customers,
your seniors, your juniors, your colleagues. This is something like the soft skills they come into play and they basically decide कि आप अपने करियर में कितनी जल्दी ग्रो करेंगे. तो ये सब जो सीख होती है ना, ये आपको बहुत जल्दी मिल जाती है जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो. इसके नेगेटिव भी हैं. लेयर ऑफ सैलरी ट्रैप. सैलरी ट्रैप क्या है? जैसे मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया. लेट्स से आपका ईएमआई बना 5000 रुपीस पर मंथ का. नाउ इट्स अ प्रेशर ऑन यू कि मेरे को हर महीने उस ईएमआई को देने के लिए जॉब करना पड़ रहा है. या मैंने पार्टी अरेंज की थी या पार्टी में या कहीं घूमने गए थे, वहां पर ट्रिप पे पैसे लगे 10,000 रुपीस, अब उसको भरपाई करने के लिए आप हर महीने सैलरी कर रहे हो. सो दिस इज समथिंग दैट यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ओन वेलफेयर, यू आर जस्ट वर्किंग टू फुलफिल योर मंथली रिक्वायरमेंट्स या फिर जो नेसेसिटीज. तो वो एक ट्रैप में आ गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जितना कम बोलो उतना ही अच्छा, बिकॉज काफी इन्फ्लुएंसर्स पहले इंस्टा और यूट्यूब पे काफी कुछ बोल रहे हैं इसको लेके. सो आई वोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दिस. द नेगेटिव part about starting immediately job is that you start as a graduate trainee and that to a lower starting salary. I'll come back to this very important thing. But when you start your career as a professional, as in अगर आप management education करके जाते हो, you start with यहाँ पे आपको 3 advantages मिलते हैं. First is to work in an opportunity to work in a good brand. Second, to start earning a higher salary, which is called offer. And the third thing is a profile, which is beyond both of them. So the factor called BPO sets in, which is brand, profile and offer, when you graduate from a top MBA college. So whether you want to take up an MBA entrance exams like Common Admission Test, Master's National Aptitude Test, Graduate Management Aptitude Test or Xavier Aptitude Test, or you want to start your career in consulting firms or accounting firms like EY, Deloitte or a BCG of the world, or अगर आपने एम्बिशंस में बहुत हाई रख रखे हैं, यूपीएससी में अगर आप एम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा. दैट मींस द थिंग व्हिच इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम इज बेसिकली एन एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, सो एंश्योर दैट आप अभी अगर फर्स्ट ईयर में जो थोड़े बहुत लोग यहाँ पर हैं वो तो अभी से स्टार्ट कर लें थोड़ा बहुत ऑन अ डेली बेसिस, ज्यादा 1 या 2 पजल्स. लेकिन जो बंदे आप सेकेंड ईयर में हैं, फुल ऑन मस्ती वगैरह सब ठीक है यार. आई हैव आल्सो बीन थ्रू द कैंपस लाइफ और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी. ऐसी लाइफ आपको दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. बिकॉज अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, फ्रेंड्स जो भी होंगे ना, टिपिकली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला मामला होता है, राइट. पॉइंट ये है यार कि इस कॉलेज में या स्कूल में जो फ्रेंडशिप थी या कॉलेज में जो फ्रेंडशिप्स हैं, यूजुअली दे आर द वंस हु लास्ट लॉन्गर. लेट मी टेल यू. बाकी कॉलेज जॉब में जब जाओगे ना, किसी कंपनी में काम करने जाओगे, वो ठीक है थोड़े टाइम में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. द मोमेंट यू स्विच जॉब 2 महीने में सब भूल जाता है. सो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स यहाँ से बनते हैं. इसको बहुत सेवर करो, बहुत मजे करो, ट्रैवल अ लॉट. आई डोंट फॉलो एनी गॉड बट आई फॉलो स्वामी विवेकानंद. उन्होंने सीधा बोला है, read a lot and travel a lot. That makes you a person. So ensure that you do such things quite often in your college. और I know Delhi University में थोड़ा relaxed है attendance वगैरह को लेके. So nobody knows better than me because I also come from that era. Although there is a gap of 1 generation between you and me. So, but Delhi University system is still relaxed as far as attendance is concerned. Till second year ऐश करो. लेकिन इस वक्त अगर सेकेंड ईयर में भी हो तो इमीडिएटली स्टार्ट फोकस ऑन एप्टीट्यूड. अब आप कहोगे यार इतनी देर से एप्टीट्यूड बोल रहा है क्या? एप्टीट्यूड इज बेसिकली योर प्रोफिशिएंसी अक्रॉस और टेस्टिंग योर कॉम्पिटेंस अक्रॉस 3 थिंग्स. नंबर 1, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हिच इज बेसिकली टेस्ट ऑफ योर मैथमेटिकल स्किल्स अप टू 10th स्टैंडर्ड, टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड टेस्ट ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. अब इस वक्त मैं मैथ्स और इंग्लिश नहीं छेड़ने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में बात करूंगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द लोअर टेम्परेचर ऑफ एसी बंद कराएं? नो? ओके सर, 25 पे सेट कर दीजिए. आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर स्टूडेंट्स. तो दोस्तों एक काम करते हैं, अगर आपने प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी है
चाहे आपने MBA एंट्रेंस की तैयारी करनी है या फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, इन तीनों में जो सबसे कॉमन चीज है वो है LRDI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो व्हाट आई विल डू, अब मैं यहां पे 3-4 एग्जांपल्स लूंगा जो इंटरव्यू में आए हुए हैं अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट में, या फिर कैट या जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट में, या फिर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में। मैं 4 क्वेश्चन हम सब मिलके एक बार करेंगे और समझेंगे कि होता क्या है। बिकॉज तुम आज ना करो, कल ना करो, कभी ना कभी लाइफ में तुम्हें ये LRDI फेस करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट बिजनेस सिचुएशंस में लॉजिकल रीजनिंग कितनी हेल्पफुल है वो मैं आप तुम्हें एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन में हम सॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, PPT गई अभी साइड में, अब हम करते हैं कुछ फ्लेक्स इन टर्म्स ऑफ योर माइंड मसल्स। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट केसलेट, फर्स्ट प्रॉब्लम, this was actually there in the as a first question in Ernst and Young, which came to Hansraj College in the year 2023. And this girl who was our student at CL, she excitedly came to me after the interview. वो उसी क्लास की यहाँ पे क्वांट की CP सेंटर में, वो फटाफट से आई, उसने बोली कि सर आप बिलीव नहीं करोगे, यूजुअली पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए हो रहा था, सॉरी फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू हो रहा था, और मेरा पहला क्वेश्चन आपको बताऊं क्या था, मेरा क्या, उसने पेपर में मेरे को क्वेश्चन जो बताया अब आप सुनो। सो यू कांट इवन टच दोज बॉल्स। ओके, आपकी सहूलियत के लिए आपको एक 2 आर्म स्केल दिया हुआ है जिसको हम तराजू बोलते हैं। ओके, एक 2 आर्म स्केल दिया हुआ है जिसको तराजू बोलते हैं, दोनों साइड से पलड़े हैं। आप उस तराजू की हेल्प यूज करनी है जिसकी वजह से आप पता लगा पाओगे। उसमें भी एक कंडीशन है, तराजू को भी नहीं छू सकते हो। आपको एक हेल्पर दिया गया है जिसको आप इंस्ट्रक्शंस दोगे कि इतनी बॉल्स उठा के यहाँ रख, इतनी बॉल्स उठा के यहाँ रख, ठीक है। और हेल्पर जब वो 5 किलो वाली बॉल उठाएगा उसे पता लग जाएगा कि हैवी है, तो आपको नहीं बताएगा। और आपको सिर्फ 2 चांसेस देने हैं हेल्पर को तराजू यूज करने के। तो 2 चांस में कैसे पता लगाओगे कि कौन सी बॉल हैवी है? Ernst and Young Financial Analyst Profile, Hansraj College, 2023. This was the first question. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसका फोन लाउड मोड पे है, स्विच ऑफ मत करना, यू माइट, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, साइलेंट मोड पे कर लो, ओके। एंड जस्ट अप्लाई योर माइंड ऑन दिस। और मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बोलने वाला जो कहीं नहीं आए हैं। ये अब आप लोगों के जनरेशन में अभी इस वक्त दुनिया में बाहर क्या चल रहा है, तुम्हारा किस तरह इवैल्यूएशन होगा, मैं उससे बता दूं। देखो मम्मा पापा इन सब का बिजनेस तगड़ा है, बापू के पास बहुत पैसे हैं, तो फाइट नहीं है। लेकिन अगर कुछ अपना करना है तो सबसे पहले तुम्हें एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। तो उससे फ्रेंडशिप करनी आज से स्टार्ट कर दो, और उसमें भी LR से, लॉजिकल रीजनिंग से। एनीवन वांट्स टू ट्राई? कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई जोक शोक मारना हो, सर थोड़ी सी रिश्वत दे दूंगा, बता दे यार, उधर से इशारा कर दे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग 3 चांस में पता करा लेंगे? कैसे? सर हमारे पास 8 बॉल्स हैं। 8 है तो पहले हमारे पास 3 चांसेस हैं। हाँ। तो हम पहले 4 बॉल्स करवा दें। सही है, ठीक है, फिर दूसरे चांस में 2 हो जाएंगी, और आखिरी में। तो इस बार ये बहुत अच्छा है कि तुम्हें, यू आर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, लेकिन हमें 2 चांस में करना है। तो भाई ने 4 इधर रखी, 4 इधर रखी, जिस साइड पे हैवी बॉल है वो साइड नीचे आएगी, तो ये पता लग जाएगा कि इन 4 में से वो कोई एक बॉल है। अब मेरी एक चांस चली गई, दूसरे चांस में उन 4 में से 2 इधर रखूंगा, 2 इधर रखूंगा, जो साइड नीचे आई उसे पता लग जाएगा कि इन 2 में से एक बॉल है, और थर्ड चांस में एक उधर रख रखूंगा जहां नीचे गई वो बॉल हैवी है। तो 3 चांस में तो डन है, लेकिन 2 चांस में करना है। व्हाट्स द नेम?
बोलो। ओके, प्रोसेसिंग, ओके। आएगा कॉम्बिनेशंस में, मतलब 4-4 तो नहीं हो सकता बिकॉज 2 के बाद खत्म हो गया, तो 4x4 इज नॉट एन ऑप्शन। थिंक ऑफ अदर कॉम्बिनेशंस। एक हिंट देता हूं, चलो शुरू हुए। इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक ऑल द बॉल्स इन वन गो इन द फर्स्ट चांस इटसेल्फ। अब इस पे बिल्ड करो। It is not necessary to take all the balls for weighing in the first chance itself. Now apply. Aji. अच्छा, आपने क्या किया, आपने 8 में से 6 बॉल्स उठाई, 3 इधर रख दी, 3 इधर दी। अगर दोनों सेम आया, अगर पलड़ा नहीं हिला तो इसका मतलब ये 6 की 6 बॉल 3 किलो की हैं। अब जो बाहर 2 बॉल पड़ी है, करेक्ट। अब आपका एक चांस खत्म हो गया, बस एक चांस बचा और 2 बॉल है। यस, तो दूसरे चांस में एक इधर, तो जो होगी ये तब है जब पहली बारी में पलड़ा नहीं हिला। हाँ, एक मिनट, हाँ सेकंड तो आपने वही किया, वही 3 इधर। अब दूसरे सिनेरियो में 3 इधर है, एक साइड नीचे आ गई। ओके, इसका मतलब ये है जो मैंने पहले 2 बॉल बाहर छोड़ी है वो 3 किलो की है, क्योंकि हमें पता लग गया एक साइड नीचे है कि वो 3 में से कोई एक बॉल। अब आपका 3 बॉल्स है और एक चांस बचा है। अब तीनों में से हम 2 बॉल लेंगे, एक साइड रखेंगे। बहुत अच्छे। अब 3 में से हम रैंडमली 2 बॉल चूज करवाएंगे, एक को इधर रखाएंगे, एक को इधर रखाएंगे। अगर वो नहीं हिला तो जो बाहर बॉल पड़ी है वो 5 किलो की है। व्हाट्स द नेम? कृष्णा के लिए तालियां। तुम लोगों को समझ में आया? चलो, ओके, लेट्स मूव अहेड। अब 4 दोस्त हैं और सी we are CL, we are career launcher, we prepare students for various entrance examinations, and सबसे important for the last 30 years we have been teaching only and only preparation for masters in business administration, primarily common admission test, graduate management aptitude test for studies abroad, Xavier aptitude test, नरसिंह मंजी admission test। ये सारे टेस्ट के जो मैं नाम ले रहा हूँ इन सब में यही सब आता है। आज की तारीख में जो क्वांट आता है, you will be surprised to know that even quantitative aptitude के क्वेश्चंस में भी आप लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो वो बाद में करते हैं, लेकिन पहले जिम कॉर्बेट में जो 4 दोस्त गए हैं उनकी कहानी सुनते हैं। This question came in Xavier aptitude test for selection into prestigious XRI Jamshedpur, not only India's but Asia's best college to study human resource management, which is one of the biggest specializations of MBA. दोस्तों, आज की तारीख में काफी कॉलेजेस काफी स्पेशलाइजेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड के जितने बिजनेसेस हैं वो 5 मैनेजमेंट पिलर्स पे टिके हैं। सबसे पहला मार्केटिंग। मार्केटिंग के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, फाइनेंस के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, लोगों के बिना बिजनेस नहीं चलता, देन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, और आज की तारीख में बिजनेस को रन करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो 5वीं स्पेशलाइजेशन है एमबीए की। तो एक्सएलआरआई के फाइनल राउंड में इंटरव्यू के एवरीवन एक्सपेक्टेड कि आइस ब्रेकर क्वेश्चन होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, योर स्टडीज को लेके, प्रोजेक्ट को लेके। नो, द क्वेश्चन वाज दिस। 4 दोस्त हैं, चारों के चारों गए जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट में अगर आप में से कोई बंदा कभी किसी नेशनल पार्क या फॉरेस्ट में गया है, जिम कॉर्बेट, हाउ मेनी ऑफ यू बीन? जस्ट आस्किंग। ओके, वन थिंग यू मस्ट हैव नोटेड, वहां पे आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं होती हैं, इट्स अ जंगल। ओके, इट्स अ जंगल। अब जिम कॉर्बेट में एक ऐसा जोन है जिसको बोलते हैं ढिकाला जोन, जहां पे टाइगर स्पॉट होने के चांस ज्यादा होते हैं, एंड दैट इज अ प्लेस जहां पे सर्किट हाउस भी है। मतलब वहां पे अगर जिम कॉर्बेट के लिए सफारी खुली है ना, मतलब ऑनलाइन बुकिंग खुली है, तो पहले 1 घंटे में जो सीट्स भरती है ना वो ढिकाला जोन की भरती है, बिकॉज दैट्स द ओनली जोन जहां पे आप फॉरेस्ट के बीच में जाके 24 घंटे रह सकते हो। ओके, अब ये तो आपकी जीके में सेट करता हूं, क्वेश्चन पे आता हूं। So in this circuit house, these guys managed to get a room, and they are the only ones. ठीक है, अब शाम का टाइम हो रहा है, सूरज ढलने को है,
and these guys are in a zone full on मस्ती party and everything. एक बढ़िया सी bonfire has been lit up और उसके साथ में हल्का म्यूजिक चला के खाना पीना मस्ती चल रहा है। अब इन चारों में से एक बंदा कहता है यार मेरे को थोड़ा एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आई जस्ट वांट टू टेक अ स्ट्रोल अराउंड द कैंपस। तो बाकी तीन कहते हैं यार अकेला क्यों जा रहा है, हम भी चलते हैं थोड़ा। तो ये चारों चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब रात हो चुकी है और इनको पता भी नहीं चलता कि ये कब कंपाउंड का गेट के बाहर निकल गए हैं। And they have actually ventured into the core zone, जहां पर आइए अब एक जोर की दहाड़ आती है and all four of them they come back to their senses and they understand what folly they have committed. पहली बात तो ये, it's a moonless night, अमावस की रात है और शेर की दहाड़ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब शेर ने उन चारों को स्पॉट कर लिया है। वैसे बाय द वर्ड्स ऑफ जिम कॉर्बेट, अगर आपने शेर को 10 सेकंड के लिए देखा है ना, तो इसका मतलब शेर आपको पिछले 1 घंटे से देख रहा है। That's how stealth the animal is. I have some this crazy habit of searching about the tigers, तो थोड़ा ये information है। So coming back to this thing, excuse me, hello, welcome to the party. Go to back. आप सब जस्ट क्लोज इट नाउ। तो लेट्स कम बैक। ये चारों अब एकदम से शेर की दहाड़ आती है एंड दीज गाइस दे कम बैक टू देयर सेंसेस। उनको वो समझते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इतना अंधेरा है कि दैट दे कैन नॉट मैंने कहीं भी नहीं बोला कि इक्वली बटेंगे, मैंने बोला कि इस हिसाब से बटेंगे कि बाकी सबके पैसे डबल हो जाएंगे। माना सर ऑलरेडी स्टार्टेड या ओके इसको बोलते हैं एसी बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, एसी बंद कर दो। या अच्छा एक काम करते हैं, कहीं क्या करते हैं, इससे पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हम लोग उस पे प्रोसेस पे जाएं। ओके दोस्तों, LRDI ऐसी चीज है जिसका कोई सिलेबस नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग तुम पजल सॉल्व करने जाओगे ना, तो मैं आपको कुछ चीजें रेकमेंड करूंगा जिसके बेसिस पे आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो। गुरु थैंक यू। तो LRDI ऐसी चीज है जिसका कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइंड। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइंड मतलब अगर तुम ये वॉरियर वगैरह इनकी तुम्हें माइथोलॉजी अगर पसंद है तो तुम्हें बताऊंगा हिंदू माइथोलॉजी में किसी के पास कोई ना कोई अस्त्र होता था यूज करने के लिए। तो इसी तरह से LRDI की एक टिपिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें फाइनल आपको आउटकम दे रखा है और आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उसमें यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइंड। इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइंड बताऊं, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लैशबैक एंड अ रिवाइंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लैशबैक और रिवाइंड में क्या फर्क है? नहीं, तो फ्लैशबैक से मेमोरी होती है, रिवाइंड आप अच्छा लेट्स से अभी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज आया जिसके बड़े सारे सीजन है, जैसे फैमिली मैन, ठीक है, फैमिली मैन का सेकंड सीजन था। फैमिली मैन के सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में
फर्स्ट सीजन का फ्लैशबैक दिखाते हैं 10 मिनट के लिए, which is फ्लैशबैक का मतलब है recap, it's a summary of whatever has happened in the past। लेकिन रिवाइंड में क्या होता है, एक के बाद एक पीछे स्टेप चलना। ओके, टू मोर अप्रोप्रिएटली टेल यू, जो यहाँ पे जब मैंने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स, तो जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था आज से 25 इयर्स बैक, मैं वो बताता हूँ तुम्हें। तो अपन लोग के जैसे भी शादी वाले सीजन है, तो आज से 20-25 साल पहले शादी में VHS कैसेट्स होती थी, घर में VCR होता था। तो जब 3-4 दिन बाद वो रिकॉर्डिंग वाले भैया कैसेट्स लेके आते थे, बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, ये देखने के लिए ही नहीं किसने क्या कर रखा है, हम कॉमेडी करते थे। हम VCR को कैसेट को डाला, उसके बाद हम रिवाइंड करते थे। हमें देखने बड़ा मजा आता था कि फेरे उल्टे हो रहे हैं, लोग अपना खाना वापस प्लेट में डाल रहे हैं, मुंह से वापस डाल रहे हैं, जयमाला उल्टी हो रही है, उसकी गले से माला निकाल रहा है। ये बेसिकली अगर आप चलो, ये क्या हो रहा है, ये रिवाइंड हो रहा है। आप कुछ मत करो। पहले तो मैंने क्या बोला आपको कि इस केस में आप इसको विजुअलाइज करो कि 4 राउंड थे, 4 बंदे थे, A, B, C और D। 4 राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड के एंड, यहां पे स्टार्ट, ये एंड, सिमिलरली स्टार्ट एंड एंड। चौथे राउंड के एंड में सबके पास कितने रुपए हैं? 32 रुपीज। 32 एंड 32। आखिरी राउंड में कौन हारा है? ए हारा है। ए के पास चौथा राउंड स्टार्ट होने पे कितने पैसे थे वो तो बाद में बताते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, बाकियों के पैसे डबल हो गए थे। इसका मतलब बी सी डी के पास अगर 32 रुपए हैं तो राउंड के स्टार्ट होने से पहले कितने थे? बहुत बढ़िया, 16 रुपए। इसका मतलब ए ने कितने रुपए बांटे इन तीनों में? 16 तो इसके हो गए, 16 इसके हो गए, 16 इसके हो गए, टोटल 48 रुपीस बांटने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 32। इसका मतलब फोर्थ राउंड के स्टार्ट में ए के पास कितने रुपए थे? 80 रुपए, which is 48 plus 32, which is 80। अब जो फोर्थ राउंड का स्टार्ट में मनी की कॉन्फ़िगरेशन है सबके पास, वही कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड भी होगी। दैट मींस ये एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड भी 80, 16, 16, 16 था। थर्ड राउंड में कौन हारा है? बी हारा है। बी जितने पैसे थे बी के पास स्टार्ट में वो तो बात की बात है, लेकिन ए के पैसे डबल हो गए। ए के डबल होने के बाद 80 है, तो पहले कितने थे? 40। सी के पास, डी के पास भी 8। डी ने कितने रुपए बांटे इन तीनों में? 40 प्लस 8, 48 प्लस 8, 56 रुपीस बटे हैं बी के द्वारा। बी 56 रुपीस हारने के बाद 16 रुपए लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब बी के पास कितने रुपए थे? 72। यही पैसे एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड थे, 40, 72, 8 एंड 8। सेकेंड राउंड में कौन आ रहा है? सी के पास कितने रुपए थे एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड राउंड? सेकेंड राउंड बताते हैं बाद में, लेकिन बाकियों के पैसे डबल हो गए। ए के आफ्टर सेकेंड राउंड 40 है, पहले कितने थे? 20। डी के पास 4। सी ने कितने पैसे हारे? 20 रुपीज प्लस 36 which is 56 प्लस 4 60 रुपीज हारने के बाद 8 रुपए बचे हैं। पहले कितने थे? 68। बड़ा काटेंगे बेचारा ने बोला। Okay, at the start of second round, the money configuration is the same configuration at the end of first round. So 20, 36, 68 and 4th. आखिर राउंड में कौन हारा था? डी कितने राउंड से स्टार्ट हुआ वो बात है, लेकिन उसने बाकियों के पैसे डबल किए। सी के पास कितने रुपए थे? सी अब से 34। भाई 34 का डबल होकर 68 बना है ना। बी 18 एंड ए 10। डी कितने रुपए हारा है? 10 प्लस 18 28 प्लस 34, 28 प्लस 34 62 रुपीज हारने के बाद 4 रुपए बचे हैं। तो कितने रुपए थे? अब तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, सारा आंसर। So the thing is, my dear friends,
हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये सारे क्वेश्चन या तो किसी कंपनी के प्लेसमेंट्स में आए हैं और प्राइमरीली एमबीए एंट्रेंस में तो है ही है। हाउ मेनी ऑफ यू, अभी एसेट्स को ईगो पे मत लेना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ स्टैमिना फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन? मेजॉरिटी विंस, तो मैं नहीं पूछूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, because the institute also needs 10 minutes, and after that please go ahead and have snacks and go to your beautiful homes. एक होमवर्क मैं देता हूं, ठीक है? अब लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 ट्राइबल्स, कोई क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क है। इंडिया और पाकिस्तान नाम से 2 ट्राइबल्स हैं। पाकिस्तान की आदत है बार बार अटैक करना और पिट के जाना, तो इस बार जब पाकिस्तान नाम के उस ट्राइब ने अटैक किया तो इंडिया वाला ने ना तो उनकी धुनाई की, बट उनके 10 बंदे ही पकड़ लिए और उनको एक ग्लैडिएटर का जो अरीना होता है उसमें उन 10 को लेकर आए। उन 10 के 10 को टैग्स बनाए नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उन सबको एक सर्कल के एज पे खड़ा कर दिया, एंड ऑल 10 ऑफ देम आर वॉचिंग टुवर्ड्स द सेंटर। So all of them are watching towards the center of the circle and they are standing in an order कि 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 के लेफ्ट में अगर 2 है तो 1 के राइट में कौन हुआ? 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अभी इंडियन ट्राइब का एक कमांडर आता है जिसके पास एक गन है जिसमें बहुत सारी बुलेट्स हैं, वो 1 के पास आता है और उसे बोलता है अपने लेफ्ट वाले बंदे को हेडशॉट मार, अपने लेफ्ट वाले बंदे को हेडशॉट मार और फिर गन पास कर दे अपने नेक्स्ट लेफ्ट वाले को। वो बंदा ही वही करेगा, अपने लेफ्ट वाले को गन शॉट मारेगा और उसके नेक्स्ट वाले को गन पास कर देगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक एक बंदा नहीं बच जाता उस पाकिस्तान नाम के ट्राइबल में, उन 10 में से। तो पहले बताओ कि वो कौन से नंबर वाला है जो बचेगा? स्टार्ट 1 से हो रहा है, हाँ 1 से, मैंने बोला ना कमांडर आएगा। मैंने ये बोला ना आपको, 1 के लेफ्ट में 2 खड़ा है, तो अपने लेफ्ट वाले को हेडशॉट मार रहा है और उसके बाद थर्ड वाले को पास ऑन कर रहा है। 7 गलत है, अब आंसर मत दियो। अरे ये तो तुम बड़े आराम से कर सकते हो, अरे ऐसे विजुअलाइज कर लो ना, पहले राउंड में सारे इवन नंबर वाले मर जाएंगे। भाई एक ने 2 को मारा, 3 के पास आई उसने 4 को मारा, 5 के पास आई उसने 6 को मारा, 7 के पास आई उसने 8 को मारा, तो पहले राउंड में सारे इवन नंबर वाले मर गए। अब गन वापस किसके पास आई? अरे जब 10 वाले की डेथ हुई तो गन किसके पास आई? 1 के पास आई। अब 1 के लेफ्ट में कौन है? वो 3 को मारेगा। अब गन किसके पास आई? 5 किसको मारेगा? अब गन किसके पास आई? वो किसको मारेगा? अब गन किसके पास आई? एंड में 5 बचेगा, 5 नंबर वाला बचेगा एंड में। अरे एक मिनट, ज्यादा बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब मर गए पहले नंबर। नेक्स्ट ईयर भाई इस साल का कैट तो अगले संडे है, तो अगले साल के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और होने वाले भी हैं। All the participants of today's session would receive an extra 4,500 off on the classroom program for entrance preparation. So ensure that you, kind of give it. Okay. तो 5 मिनट में वो लोग आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है कैट डीमैट को लेके या कुछ किसी चीज को लेके? Anyone wants to ask any question?
many of you know there is an exam called CAT, Common Admission Test? आइडिया है? पिछले 15 साल का सबसे आसान क्वेश्चन मैथ्स का, कैट का, जो बिना मैथ्स के भी सॉल्व हो सकता था, वो जस्ट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, और वो क्वेश्चन मैथ्स से तो सॉल्व हो सकता है, विदाउट मैथ्स तो उससे भी जल्दी सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन की आयरनी ये थी कि इस क्वेश्चन की लेंथ थी 10 लाइंस की। मतलब जिसने पहली बार एक क्वेश्चन देखा उसने कहा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। बट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन वाज whoever cared to read those 10 lines actually answered that question in 2 minutes. The question goes like this. एक चोर है, वो किसी शहर में नया आता है, और वहां पे एक ज्वेलरी स्टोर देखता है। क्या देखता है? ज्वेलरी स्टोर। एंड ही प्लान्स टू लूट दैट स्टोर। और पहले दिन जाके वो रेकी करता है और वो देखता है इस स्टोर में जाने का एक ही रास्ता है, मतलब आने और जाने का एक ही रास्ता है। और स्टोर के निकलने के बाद गेट नंबर 1 है, उसके बाद थोड़ी दूर चल के गेट नंबर 2 है, थोड़ी दूर चल के गेट नंबर 3 है, और गेट नंबर 3 से बाहर निकले तो ओपन रोड है, बच गए। और दोनों तरफ लंबी लंबी ऊंची ऊंची 12-15 फुट वाली दीवारें। करेक्ट? तो यहां से वो लूटने का आइडिया ड्रॉप कर देता है कि इस रास्ते को मैं चूज नहीं करने वाला, बिकॉज गेट पे, हर गेट पे गार्ड है। गेट नंबर 1 पे भी गार्ड है, गेट नंबर 2 पे भी गार्ड है, गेट नंबर 3 पे भी गार्ड है। अब वो क्या करता है? वो सुरंग खोदता है। 3 दिन 3 रात लगते हैं उसको सुरंग खोदने में, और फाइनली तीसरी रात को वो पहुंच जाता है ज्वेलरी स्टोर पे। बहुत खुश होता है, सब चीजें दिख रही होती हैं उसे लूटने के लिए, बट वो सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने सारे टूल्स यूज कर लेता है, लेकिन कोई भी लॉक नहीं खुलता। अभी थक रहा होता है, बुरे तरीके से मतलब मायूस हो जाता है, लेकिन उसकी नजर एक कोने पे पड़ती है, वहां एक पोटली पड़ी होती है। भाग के जाता है, पोटली खोलता है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता, उससे बहुत सारे हीरे निकलते हैं। वो हीरों को गिनता है और अपनी दाईं जेब में डाल लेता है, और फटाफट से सुरंग के मुंह की तरफ भागता है। अब जब सुरंग के मुंह की तरफ भाग रहा होता है तो अर्थक्वेक आता है, सुरंग का मुंह बंद हो जाता है। अब वो सुबह होने वाली है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसको ये रास्ते से जाना ही पड़ेगा। तो वो एक प्लान बनाता है रिश्वत देने का। अब उसका पैसे तो है नहीं रिश्वत देने के लिए, क्या उसके पास? हीरे। तो वो क्या प्लान बनाता है कि जैसे वो गेट नंबर 1 में गार्ड को अप्रोच करेगा, वो अपने सारे हीरो को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट को अपने राइट हैंड जेब में रख लेता है और एक को अपने हाथ में पकड़ लेता है। गार्ड जैसे उसको देखता है, उसको पकड़ने के लिए भागता है, तो गार्ड कहता है 1 मिनट रुक, और वो जो आधे हीरो होते हैं उसको दे देता है, कहता है ये ले यार। अब गार्ड भी चंट है, वो समझ जाता है कि यार अगर ये मुझे इतने हीरे दे रहा है, इसको मतलब वो बहुत सारे हीरे लेकर भाग रहा है। तो गार्ड कहता है इतने हीरो में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो जो उसके बाकी हीरे होते हैं ना, आधा हिस्सा होता है, उसमें से 2 हीरे निकालता है, देता है उसको, कहता है यार आप मुझे जाने दे। तो वो कहता है मुझे जाने दे। ये करने पे गार्ड उसे जाने देता है, जो वो अपने में से 2 हीरे और देता है। गेट नंबर 2 पे डिट्टो यही काम होता है, बचे खुचे हीरे लेके गेट नंबर 2 पे पहुंचता है, आधे हीरे वो गार्ड को दे देता है। गार्ड कहता है नहीं इतने से मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अपने हिस्से में से 2 हीरे और गार्ड को देता है और वो जाने देता है। और वही बचे कुछ हीरे लेकर वो गेट नंबर 3 पे जाता है। तो यही चीज वहां पे होती है। फाइनली जब वो बाहर निकलता है तो एक हीरा बचता है। आपको बताना है कि उसने कितने हीरे चुराए। ठीक है, दिस इज अगेन काइंड ऑफ होमवर्क। कर लेना तुम। अगर हम लोग वैसे काउंसलिंग टेस्ट पे हैं, कहां आके भी राइट आंसर दे सकते हो। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट सर फ्रॉम GIBS to please come. Please a round of applause for sir. They have arranged this entire thing and we are very grateful to GIBS. Please sir, all of you.
So I would request कि किसी को भी डेमो कितन दा मोबाइल अपना निकालो, फोटो इधर आओ हमारे पास, एक फोटो खींचो, फोटो खोल दे ऐसे खींच लिया। फिर से फोटो इधर Guys, we'll disperse in another 10 minutes. So I just request, now the lovely college has arrangements and that set up. And अगर आपको class कोई बहुत ही अच्छी लगी, just make sure that you share the feedback. And you know, as a teacher, my endeavor is always to ensure that आप लोग अपने घर से आए तो take some value. And let's be thankful to this wonderful people who have arranged my team here. Please round of applause for them. First time an institute has come forward to collaborate with Bell Launcher and vice versa. So a huge round of applause for Geeta Ratan and her family. A very good afternoon and a very warm welcome on behalf of Geeta Ratan International Business School. Thank you very much, sir, for the wonderful lecture, and I'm sure students have gained and will take away a lot from the session today. I'd like to briefly tell you about Geeta Ratan International Business School. The seed in the form of Rohini Education Society was sown to provide quality education in 1983. It has flourished to a tree spreading its branches and stems of education far and wide. Through its concerted efforts, the society has created several institutions of known standards and repute for imparting quality education right from kindergarten to master's level and under the brand name Geeta Ratan. Geeta Ratan International Business School was established in the year 2004. It's a self-financing ISO 9001-2008 certified and NAAC accredited institution. It was affiliated to Guru Gobind Singh Intrust University, Delhi and approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for technical courses and Bar Council of India for law courses. The institute conducts various courses, namely BBA, MBA, MBA International Business, BBA, MBA Integrated, BBA LLB, Integrated BBA LLB, Integrated BA LLB, LLM, and we have also, probably in the next session, we'll have BCA and LLB 3 years courses also. GIBS has been graded A by National Assessment and Accreditation Council in the 3rd cycle. GIBS has been rated A+ by State Fee Regulatory Committee, a fee committee of Government of National Capital Territory of Delhi. GIBS has been rated grading A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GGISPU University since 2013 until date. GIBS has been graded A by Academic Council of GGISP University since 2011 till date. The institute has been ranked number 3 pan-India by Dalal Street Investment Journal for MBA program.
GIBS has also achieved 4-star ranking in Institutional Innovation Entrepreneurship Cell, Ministry of Education ranking 2021. GIBS has been ranked as number 49 in top 150 B schools in India, 34th in top 100 private institutes in India, and 19th in top 20 North B schools for its MBA program by Times Business School Survey 2022. Also, GIBS has been rated as number 1 pan-India for its BBA program by Times Business School Survey 2022 and number 2 in placement in 2022. Honorable Vice Chair